What's up, guys? This is your host Abhishek, and welcome back to another video. So, I found a lot of people doing this same mistake over and over again, that they overdo with accessories and they don't even know what's overdoing and what's not, and they don't know other stuff like where to buy a good quality of accessories and what type of accessory will go with my skin color, etc. etc. So I will try to answer all of these questions in this video. So hold on to your seats. We'll be right back. So it's impossible to cover all type of accessories in a single video, in a particular video, because video बहुत लंबी हो जाएगी वरना आधे घंटे की etc etc. So मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है for you guys especially, and there will be 3 parts in this series. This is the first part, is about hands accessories. The second part will be about neck and head accessories, and the third and the last part will be about other accessories. So it's a complete guide for you guys about accessories from my side. Hope you will enjoy it, and if you want more stuff like this, then do appreciate me by subscribing to my channel and liking this video. And also follow me on Instagram. मैं वहाँ पे every Monday, Wednesday and Friday new reel upload करता हूँ, so do check it out it also. So I will try to answer that question जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि आपकी एक्सेसरीज का कलर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. See, to be very honest, skin tone or skin color doesn't matter nowadays according to me, of course, but there's a basic rule to this topic, and I will try to explain this topic in a very layman language for your better understanding. ये rule कहता है कि if your veins, अगर आपकी veins जो हैं वो बहुत ही greener tone की है, green shade की हैं, then you have a warm skin tone. And if your veins, आपकी जो veins हैं वो bluer shade की तरफ ज़्यादा हैं, तो you have a cooler skin tone. ठीक है. Now if you have a warmer skin tone, then golden accessories will suit you more, and if you have a cooler skin tone, then silver accessories will suit you more, or black accessories will suit you more. Okay, this was the basic rule. Of course, trust me guys, this rule doesn't apply nowadays, but for information purpose मैंने आपको बता दिया. अगर आप इस रूल को फॉलो करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, मैं इस रूल के बिल्कुल डीप में नहीं गया हूँ. मैंने बहुत ही ऊपर से ब्रीफली आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है. ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू आवर main topic of this video, that is hand accessory. See, broadly there are 3 types of hand accessories broadly, so I am dividing this video into 3 parts, okay, or 3 categories, whatever you want to say. Okay, first part or first category is watches, second category is about bracelets, and third and the last category is about hand rings. Okay, so let's start with our first category for this video, that is watches. See, first of all I will tell you guys things that you should not do. First advice is that don't go for cheap watches. You should have a minimum budget of 15,000. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो है ना रोड से ना जो स्टॉल्स होते हैं उनसे चीप वॉचेस बाय कर लेते हैं. सी आई गेट इट, बहुत फन तो है, देखो ठीक है कि आप इतने चीप वॉचेस बाय कर रहे हो, आई गेट इट, मैंने भी किया है. ठीक है, बट दैट्स अ बिग मिस्टेक. ओके, यू शुड है ना व्यू वॉच एज एन इन्वेस्टमेंट, और वॉच एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट ही है. ठीक है, सो प्लीज अवॉइड दैट. ओके, सेकेंड एडवाइस to you guys is that please don't change your watches like you change your clothes. Okay, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग है ना ये रोड साइड स्टॉल से परचेज तो कर लेते हैं और हर दिन बदलते जाते हैं. वो सी मैं आई गेट इट, उसमें फ़न तो बहुत है, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई गेन नहीं है.
कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे. सो प्लीज़ व्यू योर वॉच एज एन इन्वेस्टमेंट. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट advice to you guys is don't wear smart watches. Fitness bands with your formals. अगर आप let's say wedding में जा रहे हैं और कॉलेज में फॉर्मल्स में जा रहे हैं और in the matter of fact ऑफिस जा रहे हैं फॉर्मल्स में और है ना आपके रिस्ट पे फिटनेस बैंड है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिटनेस वॉच, द प्रॉपर वॉच, मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ. वो चलता है फिर भी, ठीक है, फॉर्मल्स के साथ. बट फिटनेस बैंड्स जो होते हैं ना इज़ कम्प्लीटली फिटनेस ड्रिवन. उसका फॉर्मल से रिलेटेड रिलेशन ही नहीं है कोई. ओके, मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा है. सो प्लीज़ अवॉइड दिस ऑल्सो. So moving forward, if you don't have any watch or you only have the cheap ones and you are planning to buy a new one, then I guess I've already told you that you should have a minimum budget of 1500 rupees, or then you should only go, if you are planning to buy a new one, then you should only go for reputed brand or well known brands. मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि जाके रोलेक्स खरीदो क्योंकि वो बहुत रेपुटेड ब्रांड है और बहुत लोग फर्स्ट कॉपी भी खरीदते हैं, आई नो. बट ये गलती आप मत करना, ठीक है. अगर उस बजट में ओरिजिनल ओजी चीज़ मिल रही है तो आप वही खरीदना. और आई गेस 1500 और 2500 के प्राइस बकेट में यू विल गेट अ वेराइटी ऑप्शंस लाइक टाइटन, फास्ट ट्रैक. और फास्ट ट्रैक तो आई गेस 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाती है अच्छी वॉच जो है. सो गो फॉर दीज ब्रांड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन. मैं आपको एक बात बताने भूल गया इन द बिगिनिंग, बट आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, कि आपकी जो पूरी एक्सेसरीज का थीम है ना वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि आपकी वॉच सिल्वर है, ये ब्लैक है और ये इयररिंग्स आप गोल्डन पहन रहे हो. ऐसी गलती आप बिल्कुल अवॉइड करना. मतलब ऑफकोर्स कॉन्ट्रास्ट जो होता है एक्सेसरीज में वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी ना हो कि मिसमैच हो जाए, है ना. फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड आपको ना पूरी एक्सेसरीज का सिमिलर थीम रखना चाहिए, ठीक है. लाइक अगर आपकी सिल्वर वॉच है तो आपका नेकलेस भी सिल्वर होना चाहिए, आपकी रिंग्स भी सिल्वर होना चाहिए, ब्रेसलेट भी सिल्वर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी वॉचेस इज आपके पास वॉचेस कितनी होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. और बहुत लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को कि मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप कलेक्टर हैं तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास इतनी ही वॉचेस होनी चाहिए या मिनिमम इतना होना चाहिए. मैक्सिमम यू आर अ कलेक्टर तो आप यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, ओके. बट फॉर अ नॉर्मल गाय लाइक मी, मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ कलेक्टर ऑफ कोर्स, तो मेरे हिसाब से वन मस्ट हैव और वन शुड हैव 5 वॉचेस, ओके, मैक्सिमम. ओके, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 5 ही हैं. एक जो है सबसे पहली जो कि आजकल बहुत चल रही है, ऑफकोर्स स्मार्ट वॉच सबके पास होनी चाहिए. इट्स अ नेसेसिटी नाउअडेज. आउट ऑफ 4 फर्स्ट वॉच होनी चाहिए आपकी सिल्वर वॉच, सेकंड वॉच होनी चाहिए ब्लैक वॉच, थर्ड वॉच होनी चाहिए ब्राउन वॉच, एंड फोर्थ ऑप्शनल है. मतलब मेरे हिसाब से चलेगी किसी केसेस में. सो यू शुड हैव इज़ वाइट वॉच, ओके. सो ये 5 टोटल वॉचेस आपके पास तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है. और नहीं भी है तो आप धीरे धीरे एक एक करके बाय करिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है वॉचेस में. वॉचेस अगर आपके पास सिर्फ 2 वॉचेस भी है ना, लेट्स से यू हैव स्मार्ट वॉच, दैट्स अ नेसेसिटी, और सिल्वर वॉच, तो आपका काम बड़े प्यार से जाएगा, ओके. क्योंकि ये 2 वॉचेस हैं और ये 2 ऐसे कलर्स हैं जो किसी के ऊपर भी चल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ओके. So moving towards our second part for this video, or second category for this video, that is bracelets. Now I believe in simplicity, okay. और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात करी थी ओवरडूइंग के बारे में.
यहाँ आपको ओवरडू नहीं करना है, ठीक है। मैं आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस ओवरडूइंग विद ब्रेसलेट्स एंड ऑल, और वो बहुत सारे ब्रेसलेट्स और ऐसे बैंड्स वगैरह पहन लेते हैं। बहुत बहुत वियर्ड लगता है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट या इट्स वियर्ड अकॉर्डिंग टू मी। बट आपको बहुत ही लेस भी नहीं लेना है, मतलब एक मतलब बिल्कुल ही खाली भी मत छोड़ना अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर एक्सेसरी गेम। बट बिल्कुल खाली मत छोड़ देना और बिल्कुल भर भी मत देना ज़्यादा ही कि बिल्कुल सिर्फ ब्रेसलेट्स पॉप आउट कर रहे हैं, ऐसा भी मत कर देना, ठीक है। 2 bracelets at a time at one hand are perfect. If you are not wearing a watch और आप दोनों हाथ्स में ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हो, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर आप एक ब्रेसलेट पहन सकते हो। बट 2 bracelets at a time is the perfect number, man. अगर वो ब्रेसलेट्स अगेन वो बहुत थिक नहीं होने चाहिए, सिंपल से होने चाहिए और एलिगेंट होने चाहिए, थिन होने चाहिए और आई प्लीजिंग लगेगा वो काफ़ी। सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज कि आप प्लीज़ एक ही थीम फॉलो करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी ब्रेसलेट्स का भी वही थीम होना चाहिए जो ओवरऑल एक्सेसरीज का थीम है, ओके। अगर आप सिल्वर पहन रहे हैं तो सिल्वर ही ब्रेसलेट्स होने चाहिए, सिल्वर ही वॉच होने चाहिए, सिल्वर ही नेकलेस होना चाहिए, ओके। नाउ ब्रेसलेट्स में आप ट्राई टू सेव योर मनी ऑफ कोर्स, ओके। सो और है ना, अगेन मैं वही सब रिपीट कर रहा हूँ कि आप चीप ब्रेसलेट्स की तरफ मत जाना, वो टूट जाएंगे। और मतलब ऐसे ब्रेसलेट्स भी आप पहन सकते हो ब्रांड वगैरह, और मतलब आप ब्रांड अच्छी लेना, या फिर ब्रांड ब्रेसलेट्स में उतना मेरे हिसाब से ब्रांड मैटर नहीं करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट H&M के बहुत सारे कॉम्बोज हैं ब्रेसलेट्स को लेके। आई विल पुट डाउन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ आई फाउंड वन, ओके, फॉर यू गाइस। So moving forward to our third and the last part for this video, that is rings. Now there's a mistake that I have also done myself, and I see so many people doing this mistake over and over again, that they buy coated rings from street markets. Now मैं against नहीं हूँ street markets के, बहुत फन है of course, मैं भी buy करता हूँ, ठीक है, as I told you, और काफ़ी चीप रेट पे सामान मिल जाता है और मेरे को बहुत पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आई कैन कीप गोइंग ऑन, बट देयर इज अ थिंग व्हेन यू बाय कोटेड रिंग, जो उसकी जो कोटिंग होती है ना रिंग्स की, उनकी वो ओवर द टाइम उतरने लग जाती है, ठीक है। और व्हेन ड्यू टू स्वेट और ड्यू टू वाटर एक्सेट्रा, तो वो कोटिंग्स होती है ना, वो उतरने लग जाती है और उसका ना पूरा लुक ख़राब हो जाता है। अगर आप 50 रुपये की रिंग बाय कर रहे हो, जैसे 100 रुपये की रिंग बाय कर रहे हो स्ट्रीट मार्केट से, उनकी कोटिंग की कोई गारंटी एक्सेट्रा नहीं होती है। तो इसलिए वो एक बार ही आप ओवर द टाइम आप यूज़ करेंगे तो उनकी कोटिंग उतरेगी, फिर वो पूरा लुक ख़राब हो जाता है। अगर आप ब्लैक और गोल्डन बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कोटेड रिंग एटलीस्ट मत बाय करें। इफ़ यू आर बाइंग रिंग्स फ्रॉम स्ट्रीट मार्केट्स, then you should always go for the silver ones, because silver rings पे or any accessory in the matter of fact, silver accessories if you are buying from street market, उन पे कोटिंग होती नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कोटिंग उतरने का कोई डर रहता नहीं है और आप बस उनकी केयर करोगे। तो मेरे पास भी हैं काफ़ी सारी रिंग्स और एक्सेसरी एक्सेट्रा दैट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा। और अगर आप केयर करते हैं ना उनकी, तो आपकी वो थोड़ी सी लंबी चल सकती है। ऑफकोर्स आपको है ना चीप चीज़ों के बारे में मैं बोलता हूँ कि नहीं जाना चाहिए चीप चीज़ों के पीछे, बट रिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप जा सकते हो। ट्रेंड के ऊपर आते हैं, रिंग्स आर इन द ट्रेंड राइट नाउ, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं रिंग्स को पहनते समय कि वो ओवरडू कर देते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ब्रेसलेट्स के टाइम पे, और मैं भी ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप ओवरडू मत करो। जैसे लोग मैं कहता हूँ चारों की चारों उंगली पे पहन लेंगे और 5वें अंगूठे थंब पे भी पहन लेंगे
और इधर भी पहन लेंगे और ये दोनों हाथ भर लेंगे। वो गलती मत करना, आप बहुत ही वियर्ड लोग हो। और ऊपर से वो थिक भी बहुत होती है जो मैंने देखी है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेयर। तो प्लीज़ भैया आप छपरी लगने से बचें। हमें छपरी सिंप्लिसिटी इज़ द की, ठीक है। मिनिमम चीज़ें पहने, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम ही पहने या फिर एक ही रिंग पहने, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, थिन एक्सेसरीज खरीदो, थिन रिंग्स खरीदो और उनकी क्वांटिटी बढ़ा दो बस। मतलब पूरा हाथ मत भरो। ऑफकोर्स एक रिंग, मतलब अगर आप देखो नंबर जो है रिंग्स का, वो मेरे हिसाब से 2 to 3 रिंग्स पर हैंड होना चाहिए, ठीक है। उतना सही लगता है। अगर आप 4 भर लेते हो उंगलियां तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। अगर आप सेफ साइड प्ले कर रहे हो, ऑफकोर्स इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग देन इट्स योर चॉइस। ऑफकोर्स पैटर्न इसमें कोई नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 या 3 रिंग ही होनी चाहिए एट अ टाइम, एट पर हैंड, ओके। और वो ज़्यादा ओवरडू और ओवर द टॉप नहीं लगता, अलग से उसका एक पॉप आउट नहीं होती है। एंड आई विल पुट एवरी लिंक दैट आई कैन फाउंड, ओके, इन माई डिस्क्रिप्शन, ओके। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, ओके। मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहीं डालता हूँ। एंड या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस स्टफ एंड यू विल लाइक दिस सीरीज, ओके। और अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो पे मैं एक टारगेट डाल रहा हूँ, ओके, 50 लाइक्स का, दैट्स इट। और अगर वो नहीं होता है कंप्लीट तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं और नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा इस सीरीज़ का। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट अनदर पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ देन प्लीज़ complete the 50 likes target as soon as possible. Okay, that was it from my side. Over and out.